Hello students, this is the last video lecture regarding the colloidal state or surface chemistry unit number 5. Till now we have discussed completely about adsorption, types of adsorption and colloidal, type of colloidal, how they can be prepared, what are the properties of the colloidal. We have discussed about the various properties. And the last property that I had discussed about was electrical property. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल। और इसमें जो मैंने पढ़ाया था, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो टॉपिक था कि एवरी कोलाइडल हैव ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ द चार्ज। सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल विल हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर है बात कि अगर एक कोलाइडल पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल के नाम से जाना जा रहा है तो उस कोलाइडल के हर पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। सो द पार्टिकल्स विल रिपेल टू ईच अदर एंड दे कैन नॉट कंबाइन टू फॉर्म ए बल्कियर पार्टिकल ऑफ द प्रेसिपिटेट। दिस वाज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। मींस वी हैव टू काइंड ऑफ द कोलाइडल सोल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल and second was negative charged collider, positively charged collider and negatively charged collider. So like we have a colloidal silver iodide, this is the colloidal name of the colloidal is silver iodide, and the iodide minus ions are adsorbed on the surface of this colloidal. AgI is the name of the colloidal and iodide ions are adsorbed over the surface of the colloidal. So it is a negatively charged colloidal. I think सबको समझ में आ गया होगा कि नाम जो है colloidal का वो सिल्वर आयोडाइड है और इस सिल्वर आयोडाइड के सरफेस पे आयोडाइड माइनस आयंस एडसॉर्ब्ड है। सो दिस colloidal is known as negatively charged colloidal, and the layer of this ion is fixed layer. The name of this ionic layer is fixed layer. The layer of the ions adsorbed over the surface of the colloidal. Layer of ions adsorbed over the surface of colloidal is known as fixed layer. This layer of ion is permanently adsorbed over the surface of the colloidal. अब ये कहते हैं जिस मीडियम में ये कोलाइडल होगा उस मीडियम में कुछ ना कुछ आयन होंगे पॉजिटिवली चार्ज, और जब आपको ये नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो पॉजिटिव आयन्स आके इसके साइड में क्या हो जाएंगे, अटैच। ये नेचुरल रूल है। नेचुरल रूल कहता है जब भी नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो उसके पास कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज आके अटैच हो जाएगा। नॉर्थ पोल दिखेगा तो उसके साइड में कहीं ना कहीं आपको साउथ पोल भी मिलेगा। दीज आर द नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ कौन सा है? मोनोपोली नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। कि ऐसा नहीं कि दुनिया में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव भरा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव भरा हुआ है, या नॉर्थ पोल अकेला है या साउथ पोल अकेला है। नहीं, अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है तो साउथ पोल भी मिलेगा, साउथ एग्जिस्ट करता है तो आपको नॉर्थ भी मिलेगा। अगर आपके कोलाइडल पे नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं काउंटर आयन जरूर मिलेगी इस आयन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर से पॉजिटिव आयंस इसके पास आके अक्यूमुलेट हो जाते हैं and they form, these ions are from the dispersion medium, not the colloidal. This layer is known as diffused layer. This layer is known as diffused layer or mobile layer. ठीक है, diffused layer or named as mobile layer. This layer belongs to ion layer from dispersion medium. From dispersion medium is named as mobile layer. A layer from dispersion medium which is attached nearby the fixed layer is named as diffuse layer. And most important thing, the potential difference between this positive and negative layer is named as zeta potential. This potential is named as zeta potential, यानी टॉपिक आया है यहाँ पे कौन सा, zeta potential. The potential difference between fixed and mobile layer of colloidals
colloidal soul is known as zeta potential. The potential difference between mobile layer, fixed layer and mobile layer, fixed layer and mobile layer, fixed layer and mobile layer is known as zeta potential. ठीक है, इन सभी बातों को मैं एक बार फिर से ओरली रिकैप करता हूँ कि this is the colloidal soul which is known as AgI. Silver iodide is your colloidal soul, and the iodide minus R ions get adsorbed over the surface of the colloidal soul. This colloidal became a negatively charged colloidal. This is the colloidal. Colloidal is negatively charged because over the surface of the colloidal particles we have iodide ion. अगर गलती से यहाँ सिल्वर आयंस अटैच होते हैं तो इसका नाम बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल. तो ये कहते हैं दिस इज द नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल. अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसके सराउंडिंग में अटैच है, और वो आके अटैच हो गया तो एक लेयर होगी फिक्स लेयर और एक होगी जो सॉल्यूशन से आए हुए आयंस की लेयर है. दिस लेयर इज नोन एज mobile layer, this layer is known as fixed layer, and the potential difference between positive and negative charge is named as zeta potential. क्योंकि जहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है लेयर पे तो दूसरी लेयर पे नेगेटिव चार्ज है, एक लेयर पे नेगेटिव है तो दूसरी पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव या इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. तो यानी दोनों आयंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम जनरली क्या रखा जाता है यहाँ पे जीटा पोटेंशियल. क्लियर है ये बात. आप देखो हर कोलाइडल पे आप बता रहे हो कि कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा. एवरी कोलाइडल इज चार्ज्ड आयन. तो ये कहता है कि जैसे मैंने एक सॉल्यूशन लिया, एक इन्वर्टेड ट्यूब है, लाइक इस टाइप की कोई इन्वर्टेड ट्यूब है, या कोई भी सिंपल सॉल्यूशन ले लीजिए. दिस इज द टैंक विच हैव कोलाइडल सोल, ए टैंक विच हैव कोलाइडल सोल, and this is the plus electrode, this is the battery, and this is the negative electrode, and we are allowing the current through this. When a current is passed through the colloidal soul, when a current is passed through the colloidal soul particle starts to move towards a particular electrode. When the electric field is applied, colloidal soul particles starts to move towards an electrode because they have a charge. यहाँ पे एक बात बोली गई थी, या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या उन पे नेगेटिव चार्ज होगा. कोलाइडल पार्टिकल्स पे हमेशा चार्ज होगा, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो. इस कोलाइडल पे नेगेटिव चार्ज है, इसी कोलाइडल के सॉल्यूशंस के अंदर से करंट पास कराओगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसा उन पे चार्ज होगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करना स्टार्ट करेंगे. लेट्स कंसीडर इस पे नेगेटिव चार्ज है. अगर कोलाइडल पे आपके नेगेटिव चार्ज होगा तो सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे, और वो सारे जाके कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस. This process is known as electrophoresis or cataphoresis. This process is known as electrophoresis or cataphoresis. डेफिनेशन पूछता है, जैसे ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन आती है, जैसे टिंडाल इफेक्ट की आती है, ऐसे ही डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस. तो ये कहता है कि when electrical field is applied, the colloidal particle starts to move towards an electrode which is opposite polarity to their charge, which have opposite polarity to their charge. जिस टाइप का उन पे चार्ज होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस मूवमेंट का जो नाम रखा जाता है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस. सबको समझ में आ गया कि हर इलेक्ट्रोड पे एक चार्ज होता है, उस चार्ज की वजह से जब उनके अंदर करंट पास किया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जिसकी पोलैरिटी उनके चार्ज के अपोजिट है. दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस. This process is known as cataphoresis or electrophoresis. तो आई थिंक सबको जीटा पोटेंशियल, कैटाफोरेसिस, डिफ्यूज और फिक्स लेयर के बारे में पता चल गया.
ठीक है। और ये भी पता चल गया होगा कि कोलाइडल सोल के पार्टिकल इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि उन पे चार्ज होता है। अगर गलती से वो चार्ज नहीं रहा तो वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के वो किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट की। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अगला टॉपिक है कोएगुलेशन और फॉर्कुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन और फॉर्कुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। कोएगुलेशन का दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। मैं पहले इनको वर्डिंग से डायग्राम से समझाता हूँ। दीज आर द टू कोलाइडल पार्टिकल्स एंड बोथ हैव सेम चार्ज। बोथ हैव सेम चार्ज। दीज आर द टू कोलाइडल सोल पार्टिकल्स, both have same nature of charge, that's why they are repelling to each other. These are repelling to each other. और ये कहता है इस कोलाइडल सोल के पार्टिकल के ऊपर सब पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकते। मैं इसके अंदर कुछ ऐसा रिएजेंट ऐड कर देता हूँ जो रिएजेंट इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, या क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। किस रिएजेंट को ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट। ए सब्सटेंस is added which is known as electrolyte. This electrolyte will brings these two particles closer to each other and their size will increase and they become a precipitate. They became a fresh precipitate. This process is known as coagulation. This process is known as coagulation. The process of aggregating together the colloidal particles so that they convert it to a bulkier size, bigger size precipitate particles. टॉपिक समझ में आया क्या है? The process of aggregating मतलब पास लाना, ठीक है। The process of aggregating the colloidal particles close to each other so that they combines to form a larger size particle which is known as precipitate. The process of aggregating together the colloidal particles, ठीक है, so that they get converted to a bigger size particles which is called precipitate. This process is known as coagulation. Definition कोई पूछ ले तो पहले उसको बताओ कि कोलाइडल साइज पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, उस चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे के पास नहीं आ पाते और वह एज इट इज पड़े रहते हैं। अगर कोई उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, उनके ऊपर चार्ज जो है उसको रिमूव कर दे, तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं और जब वो क्लोज आएंगे, जब वो एग्रीगेट होंगे एक दूसरे के साथ, तो एक बल्कियर साइज का पार्टिकल बनेगा जिसका नाम रखा जाएगा प्रेसिपिटेट। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर colloidal soul particles so that they get converted to a bulkier size particle or bigger size particle is known as coagulation or flocculation. This process is carried out by the help of an electrolyte. This process is carried out by the help of इलेक्ट्रोलाइट्स। किसकी हेल्प से लिए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज पार्टिकल्स व्हिच हैव पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। Electrolytes are those particles which have cation and anionic part and they get dissociated into ions. They have both part, cationic part and anionic part, and they will get dissociated into ions when they are added to the dispersion medium. They get dissociated into ions when they are added to the dispersion medium. ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गया। कोएगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के लिए हम किन का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो पार्टिकल क्या बन जाएंगे, बल्कियर साइज के क्या बन सकते हैं, पार्टिकल्स बन सकते हैं। तो कहते हैं किसकी हेल्प ली जाएगी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आया दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट। अभी कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट वो पार्टिकल होता है जिसके ऊपर दोनों आयंस होते हैं, कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोलाइट NaCl दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट MgCl2 दे दिया, इसी तरीके से Na2SO4 ये इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैव बोथ काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कैटायन भी और एनायन भी। व्हेन दे आर एडेड टू द कोलाइडल, electrolyte is added to the colloidal, then the
ion of the electrolyte which have opposite polarity to the colloidal. What समझो? The ion of the colloidal, no sorry, ion of the electrolyte which have polarity opposite to the colloidal. Let's consider colloidal is positively charged. What is the charge of colloidal? Positive charge. Electrolyte which have component of electrolyte which have negative charge like NaCl. अब NaCl में Na पॉजिटिव और Cl माइनस है, तो कहता है कि ion of the electrolyte which have opposite polarity to the colloidal will be effective, ठीक है, will be effective to carry out the precipitation. हार्डी-सेजल रूल होता है ये, बेसिकली रूल कौन सा होता है? हार्डी-सेजल रूल, ये भी लिखूंगा मैं इसके बाद, लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ. अगर आपके कोलाइडल पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव पार्ट एक्टिव होगा और वो उसका कोलाइडल का क्या करवाएगा? प्रेसिपिटेशन. जैसे इस कोलाइडल पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया उसका नेगेटिव आयन जो होगा वो इफेक्टिव होगा, वो इसके पास जाएगा और इसके चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज. और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर कोलाइडल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन इफेक्टिव होगा और वो जाके उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा और पार्टिकल्स को क्या लाएगा? क्लोज लाएगा. ठीक है. द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, the part of electrolyte having polarity opposite to charge on colloidal will be effective. वो क्या होगा? वहां से इफेक्टिव होगा to carry out the precipitation of colloidal. यानी कोलाइडल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए, कोलाइडल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट एक्टिव होगा जो अपोजिट पोलैरिटी का होगा जो कोलाइडल पे है. समझ में? कोलाइडल पे जो चार्ज है उसके अपोजिट जो आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो एक्टिव होगा. अगर कोलाइडल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट एक्टिव होगा. अगर कोलाइडल पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन इफेक्टिव होगा इन कैरी आउट द प्रेसिपिटेशन. सही है बात? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट एक्टिव होगा जिसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी आपके कोलाइडल की पोलैरिटी से. क्लियर है? लाइक एग्जांपल लेते हैं. वी हैव ए नेगेटिव चार्ज कोलाइडल. Question is that we have a negative charge colloidal and we are given 3 electrolyte. Electrolyte A is NaCl, electrolyte B is MgCl2 and electrolyte C is AlCl3. Which electrolyte is most effective to carry out the neutralization or precipitation of the negatively charged colloidal? एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल है, उसका कोएगुलेशन या उसका प्रेसिपिटेशन करवाने में या उसकी फोइकुलेशन करवाने में कौन सा आयन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा? NaCl, MgCl2 और AlCl3. तो ये कहता है कि योर कोलाइडल हैव नेगेटिव चार्ज. सो पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी इफेक्टिव. NaCl के अंदर से Na पॉजिटिव मिलेगा, MgCl2 से आपको Mg2 पॉजिटिव मिलेगा और AlCl3 से Al3 पॉजिटिव मिलेगा. AlCl3 से आपको यहाँ से क्या मिलेगा? Al3 पॉजिटिव. और ये कहता है कि इसके ऊपर +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है? +3. तो सोडियम पॉजिटिव, एक पार्टिकल सोडियम पॉजिटिव का एक कोलाइडल को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज. एक Mg2 पॉजिटिव के ऊपर +2 चार्ज होता है. Mg पे कितना चार्ज होता है? 2+ और कोलाइडल पे कितना है? -1. सो ये दो कोलाइडल पार्टिकल्स को अकेला क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज. इन द सेम वे एल्यूमिनियम हैव 3+ चार्ज, तो ये कितने कोलाइडल को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 3 को. तो एक एल्यूमिनियम 3+ कैन न्यूट्रलाइज 3 कोलाइडल. ये बात कितने लोगों को समझ में आई? देखो सोडियम पे कितना चार्ज है? +1, तो ये कितने नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 1 नेगेटिव को. मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है? +2, तो ये कितने नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 2 नेगेटिव को. एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है?
3 पॉजिटिव, तो कितने को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 3 नेगेटिव को। तो मैंने लिखा कि सोडियम पॉजिटिव आयन कैन न्यूट्रलाइज ओनली 1 कोलाइडल, Mg2 पॉजिटिव कैन न्यूट्रलाइज 2 कोलाइडल, AlCl3 इट कैन न्यूट्रलाइज 3 कोलाइडल्स। तो सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव हुआ? ये अकेला कितने का न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है? 3 का। तो मोस्ट इफेक्टिव आयन कौन सा हो गया? ये है ना। इसने कितनों का न्यूट्रलाइजेशन किया? 3 का। तो इसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या हो गई इसकी कोएगुलेशन वैल्यू हो गई 3। इट कैन न्यूट्रलाइज 3 आयंस, इट कैन न्यूट्रलाइज ओनली 2 आयंस, इट कैन न्यूट्रलाइज ओनली 1 आयन। तो कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी? एल्यूमिनियम की। अरे फिर से देखो, अगर एक कोलाइडल पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट जो डाला आपने उसका पॉजिटिव पार्ट इफेक्टिव होगा, और आपको क्या चेक करना है? पॉजिटिव पार्ट। अगर पॉजिटिव पार्ट को देखा जाए तो इसके पॉजिटिव का +1 है, इस पर पॉजिटिव +2 है, इस पर पॉजिटिव +3 है। सोडियम सिर्फ एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और मैग्नीशियम 2 को और एल्यूमिनियम 3 को। एक एल्यूमिनियम 3 पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन वैल्यू किसकी हुई? एल्यूमिनियम की। और ठीक है ना, सॉरी, कोएगुलेशन पावर, इट कैन न्यूट्रलाइज द 3 पार्टिकल्स, इट कैन न्यूट्रलाइज 3 पार्टिकल्स। तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी हो गई? एल्यूमिनियम की। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी हो गई? एल्यूमिनियम की। अब एक एल्यूमिनियम कितने कोलाइडल को न्यूट्रलाइज कर रहा है? 3 को। अगर मैं सोडियम से पूछूं, सोडियम कब 3 कोलाइडल्स को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? कितने सोडियम चाहिए मुझे 3 कोलाइडल्स को न्यूट्रलाइज करने में? कितने चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। और कितने एल्यूमिनियम चाहिए? सिर्फ 1। तो कोएगुलेशन वैल्यू वो भी बढ़ेंगे। कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी किसकी? सोडियम की। और कोएगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। तो फिलहाल मैं सिर्फ कोएगुलेशन पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। कोएगुलेशन पावर का मतलब होता है कौन सा आयन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा आयन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। लेट वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल, वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल। इस बार कोलाइडल पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ए इलेक्ट्रोलाइट है वो NaCl है, बी इलेक्ट्रोलाइट है वो Na2SO4 है, और सी इलेक्ट्रोलाइट है वो Na3PO4 है। If a colloidal have positive charge, then the negative part of electrolyte will be effective. Negative part of electrolyte will be effective. Only negative part of the electrolyte will be effective to carry out the precipitation. ध्यान से सुनना, नेगेटिव पार्ट, अगर कोलाइडल पे चार्ज पॉजिटिव है, कोलाइडल आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपका नेगेटिव पार्ट जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो इफेक्टिव होगा। एज वी नो क्लोराइड इज Cl-, सल्फेट ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? SO4 2-, ये 3 ऊपर जाके क्या बनाएगा? PO4 3-। अब एक क्लोरीन -1 होता है, तो एक पॉजिटिव को क्या कर सकता है? न्यूट्रलाइज। 1 Cl- 1 कोलाइडल को न्यूट्रलाइज करेगा। एक SO4 2- पे -2 चार्ज होता है, इसलिए 2 कोलाइडल को क्या कर सकता है? अकेला न्यूट्रलाइज। एक PO4 3- पे चार्ज होता है -3, सो इट कैन न्यूट्रलाइज 3 कोलाइडल्स। कितने को न्यूट्रलाइज कर सकता है? 3 को। ये बात समझ रहे हैं? इस पे -1 है तो ये +1 को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, इस पे -2 है तो 2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा, इस पे -3 है तो कितने को न्यूट्रलाइज कर देगा? 3 को। तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी हुई? कोएगुलेशन पावर मैक्सिमम होगी किसकी? आपकी फॉस्फेट आयन की, बिकॉज 1 फॉस्फेट आयन कैन न्यूट्रलाइज 3 कोलाइडल। 1 फॉस्फेट आयन कैन न्यूट्रलाइज 3 कोलाइडल पार्टिकल्स। 1 फॉस्फेट आयन कैन न्यूट्रलाइज 3 कोलाइडल। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो उसका अपोजिट आयन एक्टिव हो जाता है। उस अपोजिट आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। मोर द चार्ज ऑन द कोलाइट, मोर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, मोर पावरफुल विल बी। तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर, यहाँ कोएगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की। यहाँ सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी है? फॉस्फेट की। अब इसी तरीके से वैल्यू आती है जिसको बोला जाता है कोएगुलेशन वैल्यू। वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसकी डेफिनेशन में फ़र्क होता है कोएगुलेशन वैल्यू में। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमेशा मेजर करोगे उसको मिलीमोल्स में, हमेशा किस में मेजर करोगे उसको मिलीमोल्स में, रिक्वायर्ड टू कैरी आउट complete precipitation of 1 लीटर कोलाइडल। अगर आपके पास 1 लीटर कोलाइडल है तो उसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन करने में कितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू। कितना कितना इलेक्ट्रोलाइट लगा, दिस इज नोन एज कोएगुलेशन वैल्यू। 1 लीटर कोलाइडल को प्रेसिपिटेट बनाने में कितना इलेक्ट्रोलाइट लगा, 1 लीटर कोलाइडल को कंप्लीट प्रेसिपिटेशन बनाने में हमें कितना इलेक्ट्रोलाइट लगा, दिस इज नोन एज कोएगुलेशन वैल्यू। हाउ मच इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड, तो कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, कितना इलेक्ट्रोलाइट लगा। यहाँ पे मान लो 3 कोलाइडल को न्यूट्रलाइज करने में मुझे कितना एल्यूमिनियम लग रहा है, 1 एल्यूमिनियम। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे भी 3 ही कोलाइडल न्यूट्रलाइज करने हैं तो मुझे कितना सोडियम चाहिएगा, 3 सोडियम, है ना। तो सबसे ज़्यादा सोडियम कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, देखो ये तो बात क्लियर है, कोएगुलेशन पावर उसकी ज़्यादा जिस पे चार्ज ज़्यादा, कोएगुलेशन पावर उसकी ज़्यादा जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा। अब जिसके पास चार्ज नहीं है बेचारा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। मान लो आप कह रहे हो 1 सोडियम प्लस 1 कोलाइडल, 1 सोडियम प्लस 1 कोलाइडल, 1 एल्यूमिनियम प्लस 3, कितने कोलाइडल, 3 कोलाइडल, कितने कोलाइडल, 3 कोलाइडल। टोटल कोलाइडल कितने थे, 100। तो 100 कोलाइडल्स के लिए कितना सोडियम चाहिएगा, 100 ग्राम सोडियम चाहिए, 100 पार्टिकल सोडियम के चाहिए। और 100 के लिए कितने एल्यूमिनियम चाहिए, लगभग 33 एल्यूमिनियम चाहिए। लगभग कितने एल्यूमिनियम चाहिए, 33। किसकी पावर ज़्यादा, ऑब्वियस एल्यूमिनियम की पावर ज़्यादा, एल्यूमिनियम पावरफुल, इस पर चार्ज ज़्यादा, इसलिए पावरफुल, इसलिए कम लगेगा। इसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या होगी, कम। ज़्यादा कौन लगेगा, सोडियम। यानी कोएगुलेशन का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट कितना खर्च हुआ। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का खर्चा 100 और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का खर्चा कितना, 1/3, सीधा सीधा, है ना, 33 ही लगेगा। सही है। तो ये कहता है कोएगुलेशन पावर एंड कोएगुलेशन वैल्यू आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इसकी कोएगुलेशन पावर मैक्सिमम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चार्ज वाला है। इसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी क्योंकि इसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा लगेगी। सेम टू सेम यहाँ पे एक पार्टिकल सिर्फ 1 कोलाइडल का प्रेसिपिटेशन करवा रहा है, एक पार्टिकल कितने का प्रेसिपिटेशन करा रहा है, 3 का। तो कोएगुलेशन पावर क्या होगी, मैक्सिमम। और क्वांटिटी क्या लगेगी इसकी, मिनिमम। तो क्वांटिटी किसकी वैल्यू किसकी मैक्सिमम होगी, जिसकी कोएगुलेशन पावर मिनिमम होगी। समझ में आ रही। कोएगुलेशन पावर का मतलब है वो कितना पावरफुल है, कितने लोगों को प्रेसिपिटेट बना पा रहा है। और कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब उसकी कितना खर्चा आ रहा है। खर्चा तो बहुत कम आ रहा है इसके पास। सबसे ज़्यादा खर्चा किसका लगा, एल्यूमिनियम का। तो क्लोरीन का। तो क्लोरीन की कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा, कोएगुलेशन पावर सबसे कम। तो कोएगुलेशन वैल्यू एंड कोएगुलेशन पावर्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। एक और एग्जांपल है, let we have a negative charge collider. To carry out the precipitation, we have three electrolyte, SiCl4, B electrolyte is AlCl3, and C electrolyte is MgCl2. Which electrolyte is most effective for the precipitation? Which electrolyte have maximum coagulation value? Which electrolyte have maximum coagulation power? तो देखो, this is negative charge electrolyte, colloidal, so positive part of electrolyte will be effective. Positive part of electrolyte will be effective। ठीक है। तो इसका A का मिलेगा मुझे Si4 पॉजिटिव, B से मिलेगा मुझे Al3 पॉजिटिव और C से मिलेगा मुझे Mg2 पॉजिटिव। इसका एक Si4 पॉजिटिव 4 कोलाइडल को प्रेसिपिटेट बना देगा। एक एल्यूमिनियम 3 प्लस ओनली कितने के लिए, 3 के लिए। और एक Mg2 पॉजिटिव, इसमें 2 ही प्लस चार्ज है, ये 2 कोलाइडल को प्रेसिपिटेट बना पाएगा।
तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज, सबसे ज़्यादा चार्ज किस पे, सिलिकॉन 4+ पे अकेला चार को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी होगी, इसकी होगी। और सबसे कम कोएगुलेशन पावर किसकी होगी, मैग्नीशियम की। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन खर्चे में आएगा, किसका खर्चा सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का लगेगा खर्चा, क्योंकि अकेला चार को मार रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा खर्च कौन होगा, एलिमेंट मैग्नीशियम। तो कोएगुलेशन पावर मैक्सिमम किसकी होगी, मैग्नीशियम की। और कोएगुलेशन वैल्यू जो होगी वो मिनिमम किसकी होगी, जिसकी कोएगुलेशन पावर ज़्यादा थी, है ना। क्योंकि कोएगुलेशन पावर एंड कोएगुलेशन वैल्यूज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, देखो इसको एक बार। तो हमने ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन पावर। और इस रूल को जो मैंने बोला ना, द अपोजिट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी इफेक्टिव टू कैरी आउट द प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइडल is generally known as Hardy-Sezell rule. More the coagulation power, lower will be coagulation value. These are 2 points of Hardy-Sezell rule. ठीक है, now we are going to discuss about protective colloidals. Next topic, last topic है protective colloidals. Protective colloidals. As we know, we have 2 kind of colloidal on the basis of force of attraction, lyophilic and lyophobic. We have 2 kind of colloidals based on the based on the dispersion phase, dispersion medium interaction, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसके बेस पे हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लायोफोबिक जो लिक्विड्स को रिपेल करते हैं, फोबिक मतलब रिपेल करने वाले, और जो लिक्विड्स को अपने पास बुलाते हैं, लिक्विड्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो लायोफिलिक होते हैं। दे आर स्टेबल, they are stable, they are less stable as compared to lyophobic। इनके अंदर किसी ने भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, जो भी पढ़ाया था मैं, किसी ने भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला, इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें ऐड किया, ये इसका सीधा सीधा क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। अभी पढ़ा रहा था ना कि इलेक्ट्रोलाइट डालते क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। सबसे ज्यादा किसका बनता है, लायोफोबिक्स का, बिकॉज दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल। फिर से बोल रहा हूँ, लायो मीन्स लिक्विड, फोबिक मतलब रिपेलिंग, दे आर रिपेलिंग टू द लिक्विड्स, दे कैन नॉट बी स्टेबल। तो जिसके घर में आपस में लड़ाई हो रही है वो स्टेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो लड़ाई ना हो, तुम चाहते हो कि वो स्टेबलाइज हो जाए वो लायोफोबिक, तो तुम्हें एक प्रोटेक्शन लेयर बनानी पड़ेगी उसके चारों तरफ। क्या बनानी पड़ेगी, प्रोटेक्शन लेयर। तो देखो, lyophobic salts are less stable as compared to the lyophilic salts. They get easily precipitated when electrolyte is added to them. So this is a lyophobic colloidal. This is a lyophobic colloidal salt particle. We have to make a layer of protective colloidal. We have to make a layer of protective colloidal so that when electrolyte is added, there is no precipitation, वहाँ पे उसका कोई precipitation ना हो। This process is known as protection of a lyophobic colloidal. And the protective colloidals are basically lyophilic colloidals. They are basically lyophilic colloidals। सबसे अच्छी बात ये होती है lyophilic होते हैं, तो लायोफोबिक के चारों तरफ लायोफिलिक एक क्या बना लेगा, लेयर बना लेगा, और उस लेयर की वजह से वो स्टेबल हो सकता है। मैं फिर से उसी बात को रिपीट करता हूँ कि आपके पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट ना 2 टाइप के कोलाइडल्स हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफोबिक्स आर क्वाइट अनस्टेबल एंड लायोफिलिक आर स्टेबल। When an electrolyte is added to the lyophobic, they get easily precipitated, आसानी से प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो वो क्या कहता है कि आप बचाना है, इसको बचाना है तो इसके चारों तरफ क्या लगाओ, लेयर। तो लायोफोबिक कोलाइडल्स के चारों तरफ मैं एक प्रोटेक्टिव कोलाइडल की लेयर बनाता हूँ। दिस प्रोटेक्टिव कोलाइडल इज जनरली लायोफिलिक कोलाइडल्स। लायोफिलिक एग्जांपल गम, जिलेटिन, गम और जिलेटिन, these are the examples of the lyophilic colloidals. They forms a layer surrounding to the lyophobic colloidal so that when electrolyte is added to the lyophobic colloidal, there will be
नो प्रेसिपिटेशन। जब लायोफोबिक कोलाइडल में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोलाइडल है, एक इंसान बेचारा डरा हुआ है, उसका बार बार उसको कोई पीट के चला जाता है, तो तुम क्या करोगे, इसके चारों तरफ एक लेयर लगाओगे, अच्छे इंसानों की जो अच्छे बॉडीगार्ड होते हैं उनकी लेयर लगाओगे, ताकि जब कोई उसका प्रेसिपिटेशन करने आए, उसको पीटने आए, तो वो उसका प्रेसिपिटेशन ना कर सके। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ ए लायोफोबिक कोलाइडल। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर, जिसका नाम क्या रखा जाता है जनरली, गोल्ड नंबर। व्हाट इज द गोल्ड नंबर? दिस इज द नंबर, जिस तरीके से मैंने बोला था ना कोएगुलेशन वैल्यू होती है, कोएगुलेशन नंबर होता है कि वो कितने कोलाइडल चाहिए भाई, कितने कोलाइडल ना कितने इलेक्ट्रोलाइट चाहिए उसके कोलाइडल के प्रेसिपिटेशन में। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या था, कितना इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, प्रेसिपिटेशन कराने के लिए। इसी तरीके से प्रोटेक्टिव कोलाइडल्स का भी गोल्ड नंबर होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड नंबर इज फॉर द लायोफिलिक। इसको ऐसे लिखो, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइडल, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइडल मे बी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मे बी डिफाइंड एज। किस तरीके से डिफाइन हो सकती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइडल किसमें, मिलीमोल्स। कितना प्रोटेक्टिव कोलाइडल, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइडल, प्रोटेक्टिव कोलाइडल का ही नंबर होता है गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव कोलाइडल का कितना मिलीमोल ऐड करें, मिलीमोल, minimum amount of the protective colloidal that must be added to स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जिस तरीके से NaOH का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है, ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है, ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ रेड गोल्ड जनरली गोल्डन कलर का होता है, लेकिन मैंने कलर और विजिबिलिटी में पढ़ाया था रेड कलर भी होता है कोलाइडल पार्टिकल्स गोल्ड का, जब वो किस रेंज में होते हैं, नैनो रेंज में होते हैं। अरे गोल्ड का कलर प्रेसिपिटेट में किस टाइप का होता है, येलो कलर का, गोल्डन कलर का होता है, लेकिन वही गोल्ड आपका रेड कलर में मिलता है जब उसके पार्टिकल्स का साइज किस रेंज में हो, किस रेंज में हो पार्टिकल्स का साइज, कोलाइडल रेंज में। तो कहता है मस्ट बी एडेड टू द स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन, so that there is no precipitation when 1 ml of 10% NaCl is an electrolyte, NaCl is added to it। कहता है कितना मिलीग्राम या कितना मिलीमोल, ठीक है। मिलीग्राम भी हो सकता है, मिलीमोल्स भी हो सकता है, जनरली इसको मिलीग्राम्स में लिखा जाता है। भाई एक बार थोड़ा रेक्टिफाई कर लो, मिलीमोल्स के बजाय मिलीग्राम्स में लिखा जाता है। तो देखो कितना कोलाइडल, प्रोटेक्टिव कोलाइडल डालना पड़ेगा, दैट इज गोल्ड नंबर। कितने बॉडीगार्ड चाहिए, दैट इज गोल्ड नंबर। मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइडल दैट मस्ट बी एडेड टू ए स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन सो दैट there is no precipitation when 1 ml of 10% NaCl की कंसंट्रेशन भी बता दी, 1 ml of 10% NaCl is added to the red gold solution, there is no precipitation। समझ में आई बात। प्रोटेक्टिव कोलाइडल्स जो होते हैं वो कितना डाला जाए एक रेड गोल्ड सॉल्यूशन में, कितने में, रेड गोल्ड सॉल्यूशन का भी मस्ट बी एडेड टू स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर रेड गोल्ड सॉल्यूशन में कितना प्रोटेक्टिव कोलाइडल डाला जाए कि जब आप 1 ml NaCl उसके अंदर डालो जिसकी कंसंट्रेशन 10% हो, उसके डलने से कोई प्रेसिपिटेट ना मिले। टारगेट तो यही था कि इलेक्ट्रोलाइट डले किसी कोलाइडल में तो प्रेसिपिटेशन ना हो। किसी कोलाइडल में जब आपका इलेक्ट्रोलाइट डले तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो, इसको रोकने के लिए इसको डाला जाता है कोलाइडल्स और लायोफिलिक कोलाइडल्स, दैट इज प्रोटेक्टिव कोलाइडल। कितने प्रोटेक्टिव कोलाइडल डाले जाएं,
that is red gold, that is gold number. So gold number of a protective colloidal is defined, and minimum amount means how many millimoles, minimum amount of the protective colloidal that must be added to 1 liter red gold solution, so that there is no precipitation when 1 ml of 10% NaOH is added. This is called standard value of गोल्ड नंबर। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ रिलेटेड था आपका सरफेस केमिस्ट्री से। दोनों पार्ट्स हमने पढ़े यहाँ पे, एडजॉर्प्शन वाला भी और कोलाइडल वाला भी। इमल्सन एंड होमोजीनियस हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस एंड एंजाइम कैटालाइसिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही वाला पढ़ना है पोर्शन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं वो सोल्व करना। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।